how will you say some more sentences for practice? How will you say मैंने उसे कॉल किया था, कल मैंने उसे कॉल किया था पर उसने रिसीव नहीं किया. मैंने कल उसे कॉल किया था but उसने रिसीव नहीं किया. How will you say? Come on, everybody has to write down in the chat box. Either you can say or speak. I had called him yesterday, but he didn't receive my call. I had called him yesterday, but he didn't receive my call. Or okay. Now, how will you say? Ma'am, hello. Hello, yes, who's this? Hello. Ma'am, this is Deepika. Yes, Deepika. Hello, Deepika. Yes. She didn't pick my call. Ma'am, इसकी बजाय ये हो सकता है? यही होना चाहिए. यही होना चाहिए. You are right. है ना? She didn't pick up my call. I called her, but she didn't pick up my call. Ma'am, she had हो सकता है ma'am. दोनों हो सकता है. If you want to say that you called first, then she didn't receive. When you want to, focus on what action happened first and which action happened second, then you can use that sentence, right? Okay, how will you say? मैं पिछले 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ. How will you say? मैं पिछले 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ. Very good, Deepika. मैं पिछले 2 घंटे से क्लास ले रहा हूँ. Everybody. I have been taking class for I have been taking class for 2 hours. For the last 2 hours. पिछले 2 घंटे से, दीपिका. Since 2 hours. Since 2 hours. Hours. It's called hours. How will you pronounce this? Hours. है ना? देखो, पिछले 2 घंटे से. Since last. Sorry, the last. Since last. Very nice. Since last 2 hours. है ना? Sentence में मैंने क्या बोला? पिछले 2 घंटे से. है ना? ऋतु. For the last. For the last 2 hours और since last 2 hours. देखो दोनों हो सकता है. या तो आप बोलिए for the last 2 hours. मैंने क्या आपको बताया था? अगर आप for के साथ यूज कर रहे हैं तो the article लगता है. For the last 2 hours. Very good. Now it's correct. है ना? या since last 2 hours. Okay. Lipsa is also here in the class. Yes, I read your message. Okay. Now, if I say one sentence, you have to translate. है ना? One more sentence. अगर मैं बोलूं मैं 2 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ. How will you say? Come on, everybody, write down in the chat box also. मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा रही हूँ. Everybody, मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा रही हूँ. Very nice. I have been teaching here for 2 years. Very good, Deepika. Very good, Lipsa. Very nice. Correct sentence. Very good. अच्छा, अगर मैं बोलूं, if I say, just for your practice, है ना? बस I just want to know that you know or not. Okay. Very nice, Falguni. Good. Falguni is also here. Okay. अच्छा, अगर मुझे बोलना है, guys, मैंने जैसे कहा मैं 2 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ. Very nice. अगर मुझे कहना है कि मैं 2 साल से वहां पढ़ा रही थी. अगर मैं बोलूं मैं 2 साल से वहां पढ़ा रही थी. I have been teaching there for 2 hours. ये तो हो गया. Sorry. ये तो हो गया. पढ़ा रही हूँ. अगर मैं बोलूं मैं 2 साल से पढ़ा रही थी. I had been. Very nice. I had been teaching. Very good, Ritu. Very good, Lipsa. I had been teaching there for 2 years. पढ़ा रही थी मैम, past हो गया. Very nice. वही मैं चाह रही हूँ. अच्छा, चलो एक और बार सेंटेंस. अब मैं बोल रही हूँ मैं 2 मिनट से चैट कर रही हूँ. मैं 2 मिनट से व्हाट्सएप पे चैट कर रही हूँ. कैसे बोलेंगे? मैं 2 मिनट से व्हाट्सएप पे चैट कर रही हूँ. I have been chatting for 2 minutes. On WhatsApp, am I right or not? On WhatsApp. Very nice. I have been chatting on WhatsApp for 2 minutes. अच्छा, very good, Lipsa. Very good, Falguni. अब मुझे बोला है मैं 2 मिनट से WhatsApp पर चैट कर रही थी. I had been. Very nice. I had been. What about others? Very nice, Falguni. I had been chatting on WhatsApp for 2 minutes. Very nice. अच्छा, अब मैं बोलूंगी one sentence in present perfect continuous tense and you have to tell me in past perfect continuous tense. I haven't started yet, however. Okay. अच्छा, what is present perfect tense? What happens in present perfect tense? You know, when you start one action,
फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टेड वन एक्शन एंड दैट एक्शन इट्स स्टिल हैपनिंग. कोई एक्शन आप स्टार्ट करते हैं और वो एक्शन अभी भी हो रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. जैसे अगर मैं बोलूं कि हम यहाँ पर 8 बजे से पढ़ रहे हैं, गाइज वी ऑल हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 8 o'clock. Am I right or not? Yes or no? Right. Yes. Yes. Yes, Right. yes, right. इसका मतलब 8 बजे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, हमने पढ़ना स्टार्ट किया और हम अभी भी पढ़ रहे हैं. Still we are studying. That means your action is still happening, guys. Yes or no? Yes. Thank you, guys. Yes, yes. Let's try Excuse me, again. Yes. ma'am. Yes. I have a doubt. If I say that I have scored Mm-hmm. and I scored, Mm-hmm. what's different? Yes, there is difference. See, if you say I have scored, that means you're talking about something that happened just now. You are connecting something Okay. to present. जैसे मैंने कहा इतना मुझे कॉल आया, मुझे अभी कॉल आया. I have just received her call. Okay, that's it. But मैंने कहा I received It her means call. just now. Yes, just now. If I say I received her call means हो सकता है कल रिसीव करा, हो सकता है परसों रिसीव कर रहा, हो सकता है 10 मिनट पहले रिसीव करा हो, है ना? Right, like this. Okay. Clear? तो पहला था 10 मिनट में हम डायरेक्ट I scored. तो आपको बताना पड़ेगा. अगर आप बोल रहे हो आई स्कोर तो पास्ट हो गया. पास्ट मतलब भूतकाल, आप भूतकाल की बात कर रहे हैं. अगर आप बोल रहे हैं आई स्कोर, फॉर एग्जांपल आई स्कोर 85% इन क्लास 10, आई स्कोर्ड दैट मच आउट ऑफ दैट, तो ऐसे बोल सकते हैं. क्लियर? ओके ओके ओके. Okay. If I want to say कि मैंने इतने मार्क्स लाए हैं तो I have to say I have scored. वेरी नाइस. वेरी, अभी की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे इतने नंबर मिले हैं. लाइक यस, इट्स करेक्ट. नाउ इट्स करेक्ट. Yes, ma'am. ओके ओके ओके. Okay, ma'am. Thank you. वेलकम. अच्छा, अब देखिए, अब मैंने कोई एक्शन की बात कर रही हूँ. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो पास्ट में ही खत्म हो गया. जैसे वी हैड क्लास ऑन फ्राइडे. लास्ट फ्राइडे वी हैड अ क्लास. Yes or no? Yes, we had class on last Friday we had a class, right? And हम 1 घंटे से पढ़ रहे थे. अगर मुझे बोलना है हम 1 घंटे से क्लास पढ़ रहे थे. अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम 8 बजे से पढ़ रहे हैं. पर अगर मैं बोल रही हूँ मैं 8 बजे से आपको क्लास पढ़ा रही थी. फ्राइडे को मैं आपको 8 बजे से क्लास पढ़ा रही थी. There's network issue, Shanam. Don't worry. You go and come back. Go and come back. Go and come back. And switch to a place where there is good connectivity. Please, beta. Yes, you can sit near your window or door, right? Okay. Yes, Shanam. है ना? So अगर मैं बोलूँ कि कोई एक्शन मैंने स्टार्ट किया और हो रहा था, it was happening and it finished. कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हो रहा था और पास्ट में ही खत्म हो गया, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट 23rd of March 2021. It's gone, right? So I had been watching that day. I watched a movie, right? Okay, 23rd March 2021. I watched a motivational movie, right? Okay, so if I say today, मैंने उस समय ना 2 घंटे तक मूवी देखी थी. अगर मुझे बोलना है, पता उस दिन हम लोग 2 घंटे तक मूवी देखते रहे थे, तो मैं बोलूंगी I had been watching a movie for 2 hours on 23rd of March. 23 मार्च को मैं 2 घंटे से मूवी देख रही थी. तो मैंने मूवी देखना कब स्टार्ट करी? When I started my action in the past, and the action that was happening finished in the past. पास्ट में एक्शन स्टार्ट होता है, हो रहा था, वो पास्ट में ही खत्म हो गया, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. मैं 2 घंटे से मूवी देख रही थी. अगर मुझे बोलना है, वेरी नाइस फाल्गुनी, इट्स ओके शनम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. अब मुझे बोलना है कि मैं 2 दिन से कंप्यूटर ठीक कर रहा था. Now my computer is working very well, but 2 दिन पहले क्या हुआ? My computer was not working, right? It was not working. तो 2 दिन से मैं कंप्यूटर ठीक कर रहा था. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप ठीक कर रहे हैं. That's it. आपने खत्म कर दिया. मैं 2 घंटे से या 2 दिन से, चलिए मैं 2 दिन से कंप्यूटर ठीक कर रहा था. तो कैसे बोलेंगे guys?
I'm not teaching you the structure, just taking your test. कैसे बोलेंगे मैं 2 घंटे से कंप्यूटर ठीक कर रहा था? Everybody write down in the chat box. Very nice, Ritu. I had been fixing. Ritu fixing. कर रहा था. देखो इसको अगर हाँ वेरी नाइस. अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसको देखें तो पास्ट प्लस कंटिन्यूअस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस तो है, पर जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम आ जाता है तो बीन बजानी पड़ती है. क्या बजानी पड़ती है? बीन बजानी पड़ती है, राइट? सो आई हैड बीन फिक्सिंग माई कंप्यूटर फॉर 2 days. मैं वेरी गुड रंजीत, मैं 2 दिन से कंप्यूटर ठीक कर रहा था. नाउ माई कंप्यूटर इज वर्किंग. Very nice. Lipsa has just made one sentence. I had been attending spoken classes since last month. You know, Lipsa, if you are saying that I had been attending spoken classes since last month, that means you were attending class. You were attending spoken class. Now you are not attending class. अगर आप past perfect continuous tense का sentence बनाते हैं, इसका मतलब वो जो एक्शन है, वो जो काम है, वो अब आप नहीं कर रहे हैं. आप कर रहे थे किसी टाइम में, अब आप वो नहीं कर रहे हैं. क्लियर? ठीक है. वेरी नाइस. got it. Okay, so let's check out which is helping verb, which is main verb. From grammatical point of view we will learn. Had been. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था? have been और has been. यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हैज बीन और हैव बीन का पास्ट क्या हो जाएगा गाइस? कम ऑन, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. व्हाट विल बी हेल्पिंग फॉर देयर? यस, had been. Very nice. Had been will be helping verb. And नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो भाई कंटिन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब क्या होना चाहिए? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वर्ब की आईएनजी फॉर्म. एक देखिए यहाँ पर देखिए, लुक एट हियर. हैज बीन लिखा है यहाँ पर, कैन यू सी हियर? हैज बीन. फिर लिखा है हैड बीन. फिर लिखा है विल हैव बीन. कैन यू अंडरस्टैंड? हैज बीन मतलब होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसका पास्ट होता है हैड बीन. दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विल हैव बीन. विल हैव बीन मतलब होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, राइट? यस और नो? क्लियर? ओके, लेट्स प्रैक्टिस मोर. दिस इज वेरी सिंपल टेंस. अच्छा चलिए प्रैक्टिस करते हैं. गाइस गो बैक मीन्स गो टू पास्ट एंड लेट्स मेक सम रियल सेंटेंसेस, राइट? Okay, you know, in 1999 or in 2000, I was not in Bhopal. I was in Bhubaneswar as my father was transferred there. He's in government job, so he has transfers thrice, you know, in sometimes in 3 years, sometimes in 4 years, right? So we were in, you know, Odisha, Bhubaneswar in 2000, right? So I lived there for 4 years. 4 years I lived there. So if I want to say that मैं 4 साल से भुवनेश्वर में रह रही थी. Now I am not living there. I am living in Bhopal right now. I have been living in Bhopal for 20 years, for 15 years, right? But मैं कह रही हूँ कि मैं भुवनेश्वर में 4 साल से रह रही थी. So क्या होगा आंसर? Very good Ranjit. I had been living in Bhubaneswar for 10 years. For 4 years. Very nice Lipsa. I had been living in Bhubaneswar for 4 years. अच्छा, Bhubaneswar is the name of city, right? Name of city means proper noun, right? तो भुवनेश्वर का B क्या होगा? Capital. Am I right or not, Deepika? भुवनेश्वर का जो B होगा, this is for everybody. राइट? भोपाल का भी कैपिटल होता है, आपका नाम का पहला लेटर कैपिटल होता है, दैट इज प्रॉपर नाउन, राइट? सो आई हैड बीन, व्हाट शुड आई से? आई विल से आई हैड बीन लिविंग इन भुवनेश्वर फॉर 4 years, right? Now if I want to say कि मैं 2000
2001 बोल देते, 2000 से भुवनेश्वर में रह रही थी। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं 2000 से 2000 से भुवनेश्वर में रह रही थी। तो कैसे बोलेंगे गाइस? एवरीबडी राइट डाउन द चैट बॉक्स, कम ऑन। Very nice, Ranjit. I had been living in Bhubaneswar since 2010. Very nice. तो for 4 years की जगह हम क्या लिखेंगे? Since 2000, right? 2000 से रह रही थी. Very nice, very nice. Okay, okay. Can you make some sentence like this? You can share your old experience, your past experience. कि मैं 2 साल से वहां रह रहा था. You know, like this. जैसे वर्किंग एक्सपीरियंस है, पता है मैंने वहां पर 2 साल काम किया, तो मैं वहां पर पिछले 10 साल से काम कर रही थी। चलिए बोलते हैं मैं वहां पर पिछले 10 साल से काम कर रही थी। कैसे बोलेंगे मैं वहां पर पिछले 10 साल से काम कर रही थी? I had been working there. I had been working there for 10 years. For the last 10 years. For the last 10 years. Very nice. I had been working there for the last पिछले 10 साल से, for the last 10 years. Guys, I'm also revising how to use since and for, है ना? Since and for आपको आता है, but I'm doing revision. अच्छा, अगर मुझे for use नहीं करना, if I want to use since without changing meaning. Yes, Lipsa? Yes? मैम यहाँ पे since आएगा या for? No. I told you when I started present perfect continuous tense, there was a rule. क्या rule था? कि अगर last आता है, अगर किसी सेंटेंस में लास्ट आता है ना, अगर मुझे बोलना है पिछले 10 साल से, तो मैं लिख सकती हूँ I had been working there since. Let's revise a little. That's why I told you to revise, on Saturday, right? I had been working there since 10 years. देखिए मैंने क्या कहा, नंबर के साथ हमेशा फॉर आता है, ड्यूरेशन के लिए, सिंस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। पर जब आप लास्ट लगाते हैं, सिंस लास्ट लिखना है मुझे, यहाँ पर सिंस के बाद क्या आएगा? सॉरी, लास्ट 10 years. तो जब लास्ट वर्ड आता है वो सिंस के साथ आता है। अगर मुझे बोलना है सिंस लास्ट 10 years तो भी सही होगा, और अगर मुझे फॉर यूज करना है, इफ आई वांट टू यूज फॉर, तो मैं क्या करूंगी? मैं यूज करूंगी फॉर द लास्ट 10 years. हमेशा फॉर के साथ जब लास्ट यूज होता है तो दी आर्टिकल आता है, THE द आर्टिकल आता है। तो दोनों सेंटेंस सही हैं। आई हैड बीन वर्किंग देयर, है ना? लेट्स डू रिवीजन। आई विल यूज वन सेंटेंस मे बी विथ फॉर or since, and you have to convert without changing the meaning, right? Okay, let me do this. Okay, Excuse me, ma'am. yes. If you will say in Hindi third sentence, what will be the meaning of it? And fourth. Third and fourth, है ना? देखो Hindi meaning of third and fourth. सेम। देखिए दोनों का मीनिंग सेम होगा, यही मैं बताना चाह रही हूँ। यहाँ दिख रहा है फॉर, यहाँ दिख रहा है सिंस। फॉर के साथ आएगा द लास्ट, फॉर द लास्ट। सिंस के साथ आएगा सिंस लास्ट, बट दोनों का मीनिंग सेम है। पहले का मीनिंग है आई हैड बीन वर्किंग देयर फॉर द लास्ट 10 years, मैं वहां पिछले 10 साल से काम कर रही थी। और जो दूसरा सेंटेंस है आई हैड बीन वर्किंग देयर सिंस लास्ट 10 years will have the same meaning, इसका भी यही मीनिंग है। क्लियर है? दोनों का मीनिंग सेम है। Then why we are using both for ये एक and ही रूल है। since? जब हमने सिंस और फॉर पढ़ा था तो वहां पर एक रूल था कि जो सिंस होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है सिंस, है ना? आपने अटेंड की थी क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? I think I missed it. You missed it, है ना? That's why you have a little Yes, confusion, if you know how to use since and for, everything will be cleared, right? Actually, I'm doing revision here because last time when I was teaching present perfect continuous tense, I taught you how to use for and since. Again, I'm revising a little, right? देखिए, this is clear to all. बाकी सबको समझ में आ रहा है? दीपिका, Yes, ma'am. all are getting? Yes, ma'am. Okay. Now you are not getting because maybe you missed the class. If you have missed the class, please attend my recorded class, right? Okay, चलिए. Okay, ma'am, I will. Yes, you should do this, right? Okay, so seconds, देखिए मैं simply आपको बताती हूँ। for is used for the period of time, ठीक है? for is used for period of time, जैसे
सेकेंड सबसे सिंपल मैं आपको बता रही हूँ तरीका याद करने का. सेकेंड से बड़ा क्या होता है? मिनट्स. मिनट से बड़ा आवर्स. इट इज नॉट कॉल्ड हार्स. मेनी पीपल से हार्स. नो, इट्स आवर्स. डेज. आफ्टर डेज व्हाट कम्स? वीक्स, then months, then years, then decades, till 8 point. And sorry, and century. 9 point तक आप देख रहे हैं सेकेंड, फिर उसके बाद मिनट्स, आवर्स, आवर्स के बाद डेज, डेज के बाद वीक्स, वीक्स के बाद मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स मतलब होता है दशक, 10 साल मतलब होता है एक दशक यानी 1 डिकेड, देन सेंचुरी, 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 इयर्स. यू नो दिस वेरी वेल. जब ऐसा वर्ड आ जाए तो यूज होता है फॉर. क्या होता है गाइस? फॉर. जैसे एक सेंटेंस पकड़ते हैं, अगर मुझे बोलना है मैं 5 सेकंड से, अब मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना रही हूँ, मुझे बोलना है मैं 50 सेकंड से लिख रही थी. मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं 50 सेकंड से लिख रही हूँ. इफ आई से मैं 50 सेकंड से लिख रही हूँ, देन आई शुड से आई हैव बीन राइटिंग फॉर 50 सेकंड्स. और व्हाट आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ कि मैं 50 सेकंड से लिख रही थी, तो होगा आई हैड बीन राइटिंग फॉर 50 सेकंड्स. 50 सेकेंड्स, यहाँ क्या रहा है? नंबर. मोस्टली आप देखें ना तो फॉर के साथ नंबर आते हैं. 50 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स. अब देखो, संतोष हैड बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 40 मिनट्स. संतोष 40 मिनट से क्लास अटेंड कर रहा था. तो यहाँ पर 40 क्या आया? 40 के बाद आया मिनट्स, आवर्स, फॉर डेज, फॉर वीक्स, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, फॉर डिकेड्स, फॉर सेंचुरीज. क्लियर है? उसके बाद एक और फ्रेज होता है काफी समय से. अगर मुझे बोलना है मैं काफी समय से वहां पर काम कर रही थी, आई एम टेकिंग द वन सेंटेंस, आई एम रिपीटिंग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. मैं वहां काफी समय से काम कर रही थी. आई एम नॉट टेलिंग यू 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, मैं बस बोल रही हूँ मैं काफी समय. तो जब किसी सेंटेंस में आता है काफी समय से, तो आप क्या बोलेंगे? फॉर अ लॉन्ग टाइम, for a long period, forever, for a moment, for a while, all are same, right? So for a long time मतलब काफी समय से. Guys, we have 10 minutes left. I mean, I will give you another link, right? Just for reminder. मैम forever का मीनिंग तो हमेशा नहीं होता मैम. हाँ, फॉरएवर का मतलब हमेशा भी होता है. फॉरएवर का मतलब काफी समय से भी है. यहाँ पर देखिए, फॉर ए वाइल, फॉर अ मोमेंट, है ना? काफी समय से ही है सबका मतलब. थोड़ा सा. Excuse me, ma'am. यस. For a while or for a minute, which is the correct one? Because once I said for a while, so my uncle said it's not the correct one. ओके. फॉर अ मोमेंट. देखिए, फॉर अ वाइल, मिनट. देखो फॉर अ वाइल, फॉर अ मोमेंट सेम ही है. फॉर अ वाइल मतलब ये होता है काफी समय से. फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ ही समय हुआ है. अब उसमें हम ये नहीं बोलेंगे. देखिए, अगर आप बोल रहे हो फॉर 2 मिनट्स बेटा, इफ यू आर सेइंग फॉर 2, तो वो मिनट्स आ गया है, वो जो मैंने अभी आपको रूल पढ़ाया, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 15 मिनट्स. अब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि 15 मिनट्स की, 40 सेकेंड्स की, 20 मिनट्स की 2 आवर्स. आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलर टाइम की भाई 2 मिनट ही हुए हैं, कि भाई 5 मिनट ही हुए हैं, कि भाई 2 घंटे हुए. मैं बोल रही हूँ काफी समय से. मेरे सेंटेंस में क्या आ रहा है? काफी समय से, है ना? सो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, forever, for a moment, for a while. Okay, ma'am. So, if we will say for a while, is it correct or no? Yes. I had been waiting for your presentation for a while. काफी समय से मैं तुम्हारे प्रेजेंटेशन का वेट कर रहा था. जैसे मुझे बोलना है. यस, यू कैन Okay. स्पीक. मैम, मुझको अगर बोलना है मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, तो इसको क्या बोलते आपने क्या बोला रंजीत? मैं पहले से पढ़ रहा हूँ. पढ़ रहा, क्या बोला आपने? पढ़ रहा हूँ? तो क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट आया ना. थोड़ा सा आपने प्रेजेंट में बात की कि पास्ट में बात हो रही है ये? मैं मतलब वही रहा था, रहूँ कि मतलब दोनों तो वही है. मतलब हाँ. मैं चलिए मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, बट हाँ, मैं ये हाँ. बोल रहा हूँ कि लास्ट में क्या यूज करेंगे? जैसे यहाँ पे फॉर लॉन्ग टाइम हो गया, हाँ, इसमें क्या यूज अगर आपको बोलना है मैं काफी समय से पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. कैन यू रिपीट योर पहले ही सेंटेंस? Could you repeat your मैं sentence? पहले से ही पढ़ रहा हूँ, पहले से, काफी समय से नहीं, पहले से मुझे बोलना है. तो
पहले से ही पढ़ रहा हूँ, earlier हाँ। for earlier. पहले से ही पढ़ रहा हूँ। For earlier हो सकता है मैम. I have been studying पहले से. I need to check this, है ना? I need to check this. Let me check this, है ना? मैं बिना कंफर्मेशन के नहीं बोल सकती, आपको आंसर नहीं दे सकती, राइट? Let me check this कि मैं पहले से ही पढ़ रहा हूँ. I have already been, क्योंकि already तो present perfect के साथ यूज होता है. Let me check, है ना? Let me check. Let me confirm this sentence, है ना? Let me write down and I will give you the answer, right? Okay. Now, could you put down this question in the chat box of the Dr. English app? No, I will just let me Okay, write. ma'am. Let me write also. I will also write. है ना? Okay, okay, okay. है ना? This is clear. तो ये वाला रूल था, ये वाला रूल था. अब since के साथ क्या होता है? What happens with since? Actually, I am just revising for Falguni and for others also. Falguni will take time because Falguni is learning for the first time, and this is for others who are doing revision, right? Okay. तो point of time के लिए यूज होता है since. जैसे मैं रिवाइज करा रही हूँ, जैसे पर्टिकुलर डे हो गया, पर्टिकुलर मंथ हो गया, कोई भी चीज पर्टिकुलर होती है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है. जैसे कोई बर्थडे हुआ, स्पेशल डे, कोई फेस्टिवल है, नेम ऑफ डे, जहां भी नाम आ जाए ना, नेम ऑफ डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, राइट? Month, name of month since July, name of season since summer, since spring. Date हो सकती है since September 2000, since 20 September, since 15 July, since 1999, since 1992, since Diwali, since Christmas, since your childhood. Childhood is also a particular time, right? Particular point of time है. Since 8 o'clock, like this. Clear है ना? Clear है guys? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. है ना? अच्छा, एक और रूल हमने पढ़ा था, ये सबको मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था. अगर मैं बोलूं दिन भर, इफ आई से दिन भर के लिए हम सिंस भी यूज नहीं करते और फॉर भी यूज नहीं करते. मैंने शायद लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन भी किया था, है ना? सम ऑफ यू आंसर्ड करेक्ट एंड सम ऑफ यू डिडंट राइट करेक्ट आंसर. तो क्या था? जैसे मुझे बोलना है वो दिन भर पढ़ता रहा, वो दिन भर से He पढ़ रहा. had been studying all day. It had been studying all day. Very nice. He had been studying all day. I hope it's clear to all of you. Falguni, you go to the present perfect continuous tense class and revise everything, है ना? आपको सब समझ में आ जाएगा, बहुत ही easy है, right? Okay, अच्छा, ma'am. अगर मुझे बोलना है, guys, test है, अगर मुझे बोलना है कि अच्छा तुम वहां पर रह रही थी, मतलब you were living there in 2000, right? Isn't it? Yes, you were living there in 2000, right? And you had been living there for for how many years? Tell me. तो अगर मुझे पूछना, अच्छा तुम वहां पर कब से रह रही थी, तुम वहां पर कब से जॉब कर रही थी, तुम वहां पर कब से मेरा वेट कर रही थी, तुम कब से उससे बात कर रही थी. How Very long nice. you have How been? how long had you been Very living nice. there? How How long long? have you been? कुछ भी बना सकते हैं. You can make your own sentence. How long had you been? Come on. Living there. Very nice. How Living long there, had you been studying there, talking. Living there. living there, talking there, chatting there, or working there, whatever verb you are using? So how long had you been living there? Clear है? मैम एक चीज और पूछनी थी मैम. हाउ फार का मीन्स कितनी दूर होता है या किस हद तक होता है मैम? क्योंकि दो मीनिंग मैंने पढ़े हैं, मैंने चेक किया था. हाउ फार का मीन्स जो है वो दूर भी होता है, कितनी दूर, और किस हद तक भी होता है. हाँ, सही है आपका आंसर, सही है, दोनों होता है, दोनों होता है, बिल्कुल. जैसे मैंने बोला हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द बैंक. आपका जो घर है बैंक से कितनी दूर है? मैं दूरी बता रही हूँ, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर. तो बोल सकती है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द बैंक. एंड हाउ फार डू यू नो अबाउट दिस? कितना हद तक, कितना ज्यादा जानते हो, कितनी दूर तक जानते हो, है ना? अब मैं बोल रही हूँ हाउ लॉन्ग. देखिए हाउ लॉन्ग की भी दो मीनिंग होती है. जैसे हाउ लॉन्ग इज योर, लाइक हाउ फार डू यू लाइक हर. हाँ, हाउ फार डू यू लाइक, कितना मतलब हद, एक्सटेंट, हाउ मच एक्सटेंट, वो बोल सकते हैं, वो मीनिंग है सही. जैसे हाउ लॉन्ग ले रहे हैं, हाउ लॉन्ग का मीनिंग क्या होगा? हाउ लॉन्ग के दो मीनिंग होते हैं. हाउ लॉन्ग मतलब आप किसी चीज की लंबाई पूछ रहे हैं, दूरी नहीं पूछ रहे. हाउ फार इज यूज फॉर डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस दूरी के लिए यूज हो रहा है, राइट? हाउ लॉन्ग इसके यूज हो रहा है किसी चीज की साइज के लिए, कितना लंबा है. अच्छा 2 मीटर लंबा है ना? मुझे कर्टन लगाना है, आई वॉन्ट टू पुट कर्टन, एंड हाउ लॉन्ग इज दिस? कितना लंबा है?
हाउ लॉन्ग मतलब कितना बड़ा है, कितना छोटा है, हाउ लॉन्ग इज इट बिग और इज इट स्मॉल, उस टर्म में बोल सकते हैं। और एक और है कब से, हाउ लॉन्ग का एक और मीनिंग होता है कब से, जो यहाँ पर है, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लिविंग देयर, आप वहां पर कब से रह रहे थे, लाइक दिस। क्लियर है गाइस? ओके ओके ओके, चलिए। मैम, हाँ जी पूछिए। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। नो 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 हाउ फॉर मीन्स कितना टाइम से, और अनदर वन वाज नो 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 नो, हाउ फॉर मतलब कितना दूर, मैं लिख देती हूँ। हाउ फॉर कितना, मतलब देखिए, कितना दूर, और एक कितना टाइम से। हाँ हाउ लॉन्ग मतलब होता है कितने समय से ना, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख ओके, देती हूँ, कितने समय से मतलब हो गया है हाउ लॉन्ग। क्लियर है? यस मैम। हाउ फार कितना दूर, कितना दूर और कितना, है ना, ठीक है, क्लियर है। हाउ फार लॉन्ग का एक और मतलब हो जाता है, हाउ लॉन्ग का एक और मतलब है कितने how- टाइम से। कितना, कितना हाउ किस लॉन्ग हद मतलब तक। कितना लंबा, कितना बड़ा, है ना, कितना बड़ा है। हाउ लॉन्ग मतलब साइज की बात कर, कितना बड़ा कितना छोटा, तो साइज की बात कर रहे हैं, उसकी साइज की, है ना। कितना दूर, ओके मैम, नाउ आई गॉट इट। हाउ लॉन्ग इज योर टेबल, हाउ लॉन्ग इज योर कूलर, कितना लंबा है, इट्स स्मॉल, इट्स बिग, लाइक दिस। मैम यस मैम माने डेज के बाद अगो आएगा तो उसमें सिंस होगा ना, फॉर यूज नहीं करेंगे। सॉरी, जैसे कि मेरा एक सेंटेंस है, आप ही ने आपका पीडीएफ में था, शी हैज बीन इल सिंस 2 days एगो, जहाँ पे एगो लग गया वहाँ पे फॉर यूज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सेंटेंस में पढ़ा नहीं है, अभी बस पढ़ा रही थी मैं। मुझको लगा कि आप स्क्रॉल नहीं कर नहीं दिए नहीं तो मुझको लगा कि नहीं नहीं, स्किप नहीं, आई विल नॉट स्किप। एक्चुअली थोड़ा सा अलग सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट का ओके सेंटेंस है ना। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी सिंस और फॉर यूज हो सकता है, वो मुझे ये स्पेशल सेंटेंस है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, इसलिए ना मैंने इसे ब्राउन कलर से कलर किया है ना, इट्स डिफरेंट है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ना, ये भी मैं पढ़ाऊंगी, डोंट वरी अबाउट, है ना, या भी एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, राइट, है ना, आई विल एक्सप्लेन दिस, डोंट वरी। I know I have to teach this.